Okay, starting with the last chapter from physical chemistry 12th syllabus, solution and colligative properties. This chapter is mainly divided into two parts as per the name. First is entire about solutions और उसी से related second part is about its properties which are commonly called colligative properties. First of all, when I talk about solution, it's a mixture of two or more components. दो या दो से ज्यादा components जब mix होते हैं, it forms a solution. Now, the mixing depends on the particle size of the substance which is being mixed. तो particle size के basis पे तीन main type के solutions exist करते हैं. One of the type you have already studied. Can you name that? Particle size के basis पे. हाँ? If the particle size is between 1 micrometer to 1 nanometer, 10⁻⁻6 to 10⁻⁹ meter, and when these type of particles are present in a particular solvent, what is that solution called? Colloidal solution. Colloids पढ़ा है ना? अब ये रेंज से छोटे पार्टिकल्स अगर रहेंगे, smaller than that range, then it's called a true solution. And अगर उससे बड़े पार्टिकल्स रहेंगे साइज में, then it forms a suspension. Solution are the mixture of two or more components. Depending on the particle size, the mixtures are classified into three types. They are true solutions, colloidal solutions and suspensions. तो जब particle size intermediate होता है between 10⁻⁻7 centimeter to 10⁻⁻5 centimeter, यानी almost आप बोल सकते हो 10⁻⁷ to 10⁻⁹ नैनोमीटर साइज के रेंज के पार्टिकल्स अगर रहेंगे, then those type of solution is called as a colloidal solution. उससे छोटे यानी लेस देन 10⁻⁷ सेंटीमीटर यानी 1 नैनोमीटर से छोटे पार्टिकल्स रहेंगे तो that is called as a true solution. और अगर बड़े पार्टिकल्स रहेंगे greater than 10⁻⁷ meters, then it's called as a coerced suspension. Coerced suspension, या simply we call it as a suspension. Now true solution में these particles completely get dissolved into the liquid. ठीक है, तो जो छोटे छोटे particles dissolve होते हैं in the true solution, it's called as a solute, और जिस medium में वो dissolve करता है that is called as the solvent. But in case of colloidal solution, the particles do not get dissolved. They actually get अगर पार्टिकल साइज बहुत छोटे होते तो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएंगे, पार्टिकल साइज बड़े होंगे तो सेटल डाउन हो जाएंगे टू फॉर्म अ प्रेसिपिटेट, और अगर पार्टिकल साइज इंटरमीडिएट होते हैं तो दे टेंड टू फ्लोट, एंड सच टाइप ऑफ पार्टिकल्स आर सेड टू बी डिस्पर्स्ड. इसीलिए जो दो कंपोनेंट्स है कोलॉइडल सिस्टम में या कोलॉइडल सॉल्यूशन में, दे वर कॉल्ड, क्या बोलते हैं? These particles are called, हाँ, यहां पे सल्यूट नहीं बोलते हैं. कोलॉइडल सॉल्यूशन को कोलॉइडल डिस्पर्जन भी बोलते हैं, उसी के ऊपर नाम दिया गया है. व्हाट आर दीज पार्टिकल्स कॉल्ड? एनालॉगस टू सल्यूट, दिस इज कॉल्ड डिस्पर्स्ड फेज, एंड एनालॉगस टू सॉल्वेंट, दिस विल बी कॉल्ड डीएम, डिस्पर्जन मीडियम. नहीं कराया था क्या? आज है Akriti, wasn't it done? DP and DM? It was.
Sorry? It was done. Done, na? सोता है जय. See, in case of true solution, matlab the example here is salt in water. When you dissolve the salt in water, the salt particles NaCl get completely dissolved, dissociate होते हैं, and finally dissolve होने के बाद it forms a homogeneous mixture, and that homogeneous mixture is called as a true solution. The components of true solution are called solute and solvent, which you are well acquainted with. In case of colloidal solution, the particles do not get dissolved, they get dispersed. Simple इसका मतलब है float होना, ठीक है. और इसका example है milk. Milk is an emulsion या milk is a colloidal solution of fat dispersed in water. मतलब फैट के यानी ऑयल के जो पार्टिकल्स हैं वो फ्लोट होते हैं, स्प्रेड होते हैं यूनिफॉर्मली थ्रू आउट वाटर. So the fat molecules are called as the dispersed phase and the water is called as the dispersion medium and the particles are said to be dispersed. Dispersed का simple मतलब होता है float. अब मुझे बताओ ये particles float क्यों करते हैं? Why they don't get dissolved? Why they don't get settled down? यहां पर कोलॉइडल में डिस्पर्स होने का रीजन क्या था? The reason is these particles carry a Positive or negative charge. superb carry a charge. ये पार्टिकल्स चार्ज होते हैं और चार्ज होने की वजह से ये हमेशा एक दूसरे से रिपेल करते हैं, तो ना तो वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो पाते हैं ना कंप्लीटली सेटल डाउन हो पाते हैं, वो फ्लोट होते रहते हैं. दैट इज द रीजन वी कॉल कोलॉइड्स टू बी कोलॉइडल डिस्पर्जन. द पार्टिकल्स कैरी अ चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव. इसी के बेसिस पे आपने पढ़ा होगा पॉजिटिव सॉल नेगेटिव सॉल, ठीक है. और पार्टिकल साइज जब बहुत बड़ा होता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सेटल डाउन हो जाता है एंड दैट्स व्हाट वी कॉल इट एज अ सस्पेंशन. नाउ डिपेंडिंग ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज and the dispersion medium, that is solid, liquid and gas, how many type of colloids were classified? कितने टाइप के कोलॉइड्स आपने पढ़े हैं? Have you studied about solid sol, aerosol, emulsion, foam? Gautam? Hello? 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 Yes, sir. Yeah. So, referring to colloids, depending on the physical state of the dispersed phase and the dispersion medium, we have studied about 8 type of colloidal systems. 8 types. गैस इन गैस को हम कोलॉइड्स में कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है. तो जो कॉम्बिनेशन आया था वो 8 टाइप्स का था. अब सेम लाइंस पे कमिंग टू द सॉल्यूशंस, डिपेंडिंग ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट, there are 9 type of solutions which can be classified. And here we have the different types of binary solution. Binary matlab there are only two components, one is the solute and other is the solvent. अब अगर components 3 या 3 से ज्यादा होंगे we can call it as ternary, quaternary and so on. लेकिन syllabus में और जो most common type of solutions exist करते हैं they are binary solutions. So here we have the table in which there are 3 main types of solutions you can observe. The first is solid solutions, second is liquid and the third one is gaseous. Solid solutions वो होते हैं in which the solvent is always the solid.
Solid solutions are those in which the solvent is always the solid and the solute can be solid, liquid or gas. Liquid solutions में solvent liquid होता है, solute solid, liquid, gas हो सकता है. Gaseous solution में solvent is always the gas, solute can be solid, liquid or gas. अब examples को समझने के लिए you just speak the type of the solution in the form of solute dissolved in solvent. The first type आप read करोगे solid dissolved in solid. अब दो solids आपस में dissolve तो नहीं कर सकते हैं अगर solid के state में है तो, लेकिन वही solids अगर molten form में हो तो this molten form can be mixed with each other to form alloys. So alloy is a solid in solid type of solution. And कुछ alloy के common examples हैं. Brass is an alloy of copper and zinc. German silver is an alloy of copper, zinc and nickel. Bronze is an alloy of copper and tin. Generally ये common examples को brass and bronze को आप याद रख सकते हो that brass is cousin and bronze is cut-in. Brass is cousin and bronze is cut-in. अब brass के साथ German silver याद रखो, it's cousin and nickel. Cousin and nickel. Composition percentage कितना है वो याद नहीं रखना है, लेकिन कौन कौन से metals है वो याद रखना है. इनफैक्ट 2021 के पेपर्स में जर्मन सिल्वर के बारे में पूछा गया था. द कॉम्पोजिशन इज जर्मन सिल्वर इज एन अलॉय ऑफ cousin एंड निकल, कॉपर, जिंक एंड निकल. इस साल का क्वेश्चन था. ठीक है. और इसी साल एक और अलॉय आया था गन मेटल. ब्रॉन्ज के साथ इसको याद रखो, गन मेटल इज कंपोज्ड ऑफ कटिन एंड जिंक. लिख लो प्लीज, कटिन एंड जिंक. 4 एग्जांपल्स. आगे भी मैं चैप्टर में प्रोग्रेस करूंगा तब और अलॉयज के एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं. फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं बट आर टू बी रिमेंबर्ड. Next is liquid dissolved in solid. So we have amalgams under this category wherein the liquid mercury is dissolved in the metals like sodium, zinc to form metal amalgams. So यहाँ पर we can have amalgam of mercury with sodium, zinc. Iron एक ऐसा element है जो amalgam नहीं बनाता है. In fact, it is the only element in the periodic table which does not form amalgam. Remember that and write it down. Iron does not form amalgam with mercury. The reason is related to its structure. Amalgam सब metals के साथ almost बन सकता है. Iron के साथ amalgam formation या amalgamation जो process को बोलते हैं वो नहीं होता है. Iron does not form amalgam. बाकी सिल्वर का अमालगम जो है वो डेंटिस्ट यूज करते हैं टू फिल अप द कैविटीज. सिल्वर फाइलिंग्स बोलते हैं या सिल्वर अमालगम बोल सकते हैं उसमें. ठीक है. गैस इन सॉलिड सोल्यूशन एग्जांपल है हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब्ड ऑन टू द सरफेस ऑफ निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम. जब हाइड्रोजनेशन करते हैं तो गैस एब्जॉर्ब करता है सॉलिड मेटल सरफेस के ऊपर. So that is an example of gas in solid type of solution. तो solution हमारे दिमाग में होता है कि liquid होना चाहिए. तो it's not necessary that solution must have a liquid. It can have any physical state of solid, liquid and gas. The combinations can be 9. ठीक है. अब liquid solutions में solid and liquid. सबसे पहले ये सबसे common type of solutions है which we come across in our day-to-day life. Solid and liquid में we have salt या sugar dissolved in water. Liquid dissolved in liquid में we can have ethanol dissolved in water. Gas in liquid में we can have aerated drinks. A very common and interesting example. Aerated drinks में carbon dioxide dissolved होता है पानी में. Aquatic species जो होते हैं marine species, they survive because of the dissolved oxygen in water.
Likewise, for many of the industrial purposes, we require nitrogen to be dissolved in chloroform. So these are all examples of gas and liquid. उसके बाद gaseous solutions में the solvent is always the gas and the solute can be solid, liquid or gas. So solid and gas में we have I2, which is the purple colored solid dissolved in a gaseous mixture, that is air. Camphor in nitrogen gas, कपूर नाइट्रोजन में डिसॉल्व हो सकता है तो उसको बोलते हैं camphor in nitrogen is a solid in gas type of solution. ठीक है, तो बहुत बार ऐसे भी आता है vice versa कि camphor in nitrogen is an example of solid in gas, liquid in gas, gas in gas या solid in liquid. कौन से टाइप का सोल्यूशन है? बहुत सिंपल टाइप के क्वेश्चंस आ चुके हैं और इस साल भी आए हैं और आगे भी आएंगे. ठीक है, तो टेबुलर फॉर्म में जो डेटा है वो आपको मिस नहीं करना है. यू हैव टू डू इट वेरी वेल, थरली करना है इसको. Liquid in gas, we have chloroform dissolved in the nitrogen gas, and gas is gas, it's normally a mixture. तो colloids में तो हम gas and gas की बात ही नहीं करते हैं. Solution में अगर mixture बोलते हैं तो yes, gas and gas is a mixture because it's a mixture or diffusion of non-reacting gases like oxygen, nitrogen and many other gases in small proportion. Clear है ये? Yes, sir. Now these were the type of colloidal systems, and in the colloidal system analogous to solute we have the dispersed phase, analogous to solvent we have DM, dispersion medium, and type of the colloidal system, ये जो नाम है ये भी काफी important है. ठीक है, और उसके corresponding examples. Now this table also you can remember in the same format as I have discussed the solutions. मतलब सबसे पहले सॉलिड टाइप के कोलॉइडल सिस्टम्स को याद रखो जहां पे डिस्पर्जन मीडियम इज द सॉलिड. मतलब वी कैन हैव सॉलिड एंड सॉलिड, लिक्विड एंड सॉलिड एंड गैस एंड सॉलिड. Solid and solid type of colloidal system is called solid sol. The word sol refers to colloids, remember. And जब dispersion medium solid होता है तब उसको solid sol बोलते हैं. Similarly, gas and solid को भी solid sol बोलते हैं, the same name. But liquid and solid को हम solid sol बोल सकते हैं, but उसको एक special नाम दिया है gel. और अब जैसे आप इसको रीड करोगे एग्जाम्पल्स भी क्लियर होने चाहिए. लिक्विड गेटिंग डिस्पर्स्ड इन सॉलिड. जेलीज में क्या होता है, अंदर का पार्ट में लिक्विड रहता है और बाहर का पार्ट सॉलिड रहता है. तो देयर इज अ लिक्विड व्हिच इज डिस्पर्स्ड इन सॉलिड, हेंस इट्स अ जेल टाइप ऑफ कोलॉइडल सिस्टम. Okay, so basically from this table you can get the questions like smoke. Smoke is an example of what type of colloidal system? So the answer will be solid in gas. So you always say or speak a system as dispersed phase, dispersed in dispersion medium. So it's solid in gas, not gas in solid. Gas in solid अलग type का system हो जाएगा because उसमें gas dp होगा और solid dm होगा. So it's always dp in dm. ठीक है, या फिर नाम भी पूछा जा सकता है that smoke belongs to which type of colloidal system, या type of colloid का नाम क्या है. The answer will be aerosol. ठीक है, इस टेबल के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं. ठीक है, सो प्लीज रिमेंबर दिस टेबल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. Sir, do we have to put on a video? No, no, no. Turn it off. Okay. Then a liquid type of colloidal systems में we can have solid in liquid, liquid in liquid and gas in liquid. You remember in this sequence only. Number कर रहा हूँ आपके लिए. Solid and liquid को we just call it as sol. Liquid and liquid is famously called emulsion, of which milk is the common example, and gas and liquid is called foam. Froth, whipped cream, soap, yes, are soap, leather, they are all examples of foam colloidal system. Then gas के colloidal systems में हमारे पास दो ही example है, क्योंकि मैंने बोला था gas in gas को हम colloid नहीं consider करते हैं. ठीक है, तो we can have solid in gas as aerosol and liquid in gas also named as aerosol.
यानी जब डिस्पर्जन मीडियम गैस होता है, बोथ द सिस्टम्स आर एरोसॉल. डिस्पर्जन मीडियम जब सॉलिड होता है, then the system is a solid sol accepting liquid and gas which is given a name gel. Then liquid अगर डिस्पर्जन मीडियम है तो इसमें सॉल और सॉल, इमल्शन या फोम, ये तीन अलग नाम दिए जाते हैं. खाली इसके लिए आपको ध्यान रखना है, the names for the colloidal system are different. Rest examples are something which is to be remembered. Fine. Yes. Now, coming to the next part, concentration of solutions. तो solutions का concentration measure करने के लिए अलग अलग concentration terms थे जो हम मूल concept में already कर चुके हैं. And for the formulas, some representation we had followed. One will represent the solvent, two will represent the solute, and sol will represent the solution. So first is percent by mass या percent by weight. And in all the concentration terms, we have the ratio in which the numerator is the solid, the denominator is the solution. खाली एक concentration term ऐसा था जहां पर denominator solvent था. Which concentration term was that? Molality. तो उस concept से आप formulas को बहुत easily याद रख सकते हो. So coming to the first concentration term, percent by weight indicated as percent W by W is equal to the ratio of weight of solute upon the total weight, meaning the weight of solution, and percentage है तो multiply by 100, which can also be written as W2, 2 माने solute upon W1 plus W2, यानी solute plus solvent into 100. So if I say 10% by weight NaCl solution is there, 10% by weight नमक का पानी, इसका मतलब 10 grams of NaCl is present in 100 grams of solution. 100 ग्राम of the solution. तो यहाँ पर जो हम यूनिट कन्वेंशनली लेते हैं वो हमेशा ग्राम ही लेंगे. 10% by weight का मतलब 10 ग्राम of NaCl in 100 gram of the solution. इससे तीन इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा. The first one is W2 which is equal to 10 gram solute का, W sol which is equal to total 100 gram, reference अपना 100 है, तो W1 जो है that will be 100 minus 10 which is 90 grams. ठीक है. Once you know the weights information, you can convert it into moles. And if you know the volume, you can get different concentration parameters like percent by volume, molality, सब कुछ आप ढूंढ सकते हो. तो जो interconversions है concentration terms का, that can be done with this information. So example, 10% by weight of NaCl, ये already मैं आपको बता चुका हूं. अब एक commercial example ध्यान दो. Commercial bleaching solution contains 3.62 mass percent of sodium hypochlorite in water. Mass percent of sodium hypochlorite in water. अब bleaching solution की अगर मैं बात करूं तो P block element से can you give me some more example of bleaching agents? Cl2, SO2. Sorry? Cl2 and SO2. Yes. Moist chlorine, then SO2, again that is moist SO2. Okay. Similarly, hydrogen peroxide is also a good bleaching agent. उसके अलावा क्लोरीन को अगर NaOH में डिसॉल्व करे तो वो भी एक अच्छा ब्लीचिंग एजेंट बनता है. इनफैक्ट क्लोरीन को अल्कली के साथ डिसॉल्व करेंगे तो वो सोडियम हाइपोक्लोराइट ही तो बनाएगा. And can you tell me this sodium hypochlorite was also a reagent in which important organic reaction? Haloform test. Super. Haloform test का ये reagent है. मतलब क्लोरीन OH माइनस या क्लोरीन NaOH या NaOCl
ऑर्गेनिक में एरो में दिखे, इसका मतलब हेलो फॉर्म सोचना 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 है। ठीक है, एक और चीज, ये जो मॉइस्ट क्लोरीन peroxide और NaOCl है, these are all bleaching agents which have the bleaching action due to which reaction? Oxidation. Oxidation. But SO2 का जो bleaching action था, that was due to Reduction. reduction, क्योंकि यहाँ पर नेसेंट हाइड्रोजन निकलता है, बाकी सब में नेसेंट ऑक्सीजन निकलता है। ये सब इंफॉर्मेशन हम कर चुके हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखना एज अ फैक्ट कि कमर्शियल ब्लीचिंग सोल्यूशन में सोडियम हाइपोक्लोराइट होता है और उसका कॉन्सेंट्रेशन 362 मास परसेंट होता है। नेक्स्ट इज परसेंट बाय वॉल्यूम। So percent by volume is once again the ratio of volume of the solute upon volume of the solution into 100. So for example, if I have 5% by volume H2SO4, उसका मतलब 5 cm cube H2SO4 is dissolved in 100 cm cube या 100 ml of the solution. तो ये रीड करना इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर वॉल्यूम के केस में द यूनिट इज ऑलवेज द CGS यूनिट बाय कन्वेंशन एंड वी ऑलवेज टेक सेंटीमीटर क्यूब, cm क्यूब लेते हैं। ठीक है, तो इससे भी हमें दो इंफॉर्मेशन मिलता है। वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूट 5 cm क्यूब है, वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन 100 ml या 100 cm क्यूब है। तो कैन यू टेल मी द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट ओवर हियर? कैन यू डिटरमाइन? No. No, because volumes are Not additive. not additive. तो यहां पर 5 cm क्यूब का सोल्यूट 100 ग्राम के सोल्यूशन में है, इसका मतलब 95 cm क्यूब सॉल्वेंट होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, अगर हम अजम्पशन लेते हैं कि वॉल्यूम्स ऐड अप कर सकते हैं तो फिर दैट विल बी ट्रू। तो ये रीजन क्या है इसका? when two liquids are mixed with each other or when two liquids dissolve into each other, there are empty spaces in the liquids which are occupied by the molecules. इसीलिए नेट वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम जो होता है वो सम ऑफ द वॉल्यूम्स के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो मोर और लेस वो इक्वल होगा, बट डायरेक्टली अगर बोलना है कि 95 cm क्यूब सॉल्वेंट है तो दैट विल बी इनकरेक्ट। आगे एक कमर्शियल एग्जांपल, 35% by volume of ethylene glycol is used as an antifreeze for cooling the engine. Antifreeze is a substance which prevents the water to be frozen, and this is required in many of the cold countries for the radiators and also for lowering the freezing point of the water to dissolve the snow. ठीक है, तो जो एंटी फ्रीज कमर्शियली यूज करते हैं दैट इज इथिलीन ग्लाइकॉल। जस्ट अ सेकेंड। And at this concentration, the antifreeze lowers the freezing point of water to minus 17.6 degrees Celsius. Minus 17.6 degrees Celsius डिप्रेस करता है या फ्रीजिंग पॉइंट को लोअर करता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हम आगे भी पढ़ेंगे इन दिस चैप्टर ओनली। Then mole fraction we know is represented by X. It's the ratio of the moles of one component upon the total components. So we can have mole fraction of the solvent indicated as N1 upon the total moles N1 plus N2, considering it to be a binary solution. X2 will be equal to the mole ratio of N2 upon N1 plus N2. क्योंकि ये रेशियो है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, इट्स अ यूनिटलेस क्वांटिटी, एंड फ्रैक्शन है, मतलब x1 plus x2 will be equal to 1. Then comes the concentration measured in terms of molarity, which is the most common way of measuring the concentration of solutions, and is defined as the moles of the solute upon the volume of the solution in dm cube.
ठीक है, तो जैसे 0.2 मोलर H2SO4 सोल्यूशन अगर होगा तो इट इंडिकेट्स 0.2 मोल्स ऑफ H2SO4 dissolved in 1 liter या 1 dm cube of the solution. 1 liter या 1 dm cube of the solution. Fine. I hope this is all understood because ये सारी चीजें हम कर चुके हैं already. Yes. Then molarity के बाद we have molality which is differentiated by छोटू m. Now what was the reason of introducing this new concentration parameter when we already had the commonly used molarity? Temperature. Independent of temperature. Independent of temperature. So those concentration terms which have volume involved are always temperature dependent, but ऐसे concentration terms जो mass के related measure होते हैं वो temperature independent होते हैं. तो अगर मैं start से देखूं तो percent by mass is temperature independent, but percent by volume will be temperature dependent. Mole fraction independent है, मोलैरिटी डिपेंडेंट है, बट मोलैलिटी इंडिपेंडेंट हो जाएगा. ठीक है, अब यहां पर दिस इज ओनली कॉन्सेंट्रेशन टर्म विच वाज मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट एंड द फॉर्मूला वाज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट अपॉन द वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी. तो इसका जो यूनिट है दैट इज मोल पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट. इट्स मोल्स ऑफ द सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन किलोग्राम. ठीक है, तो अगर मेरे पास 0.5 छोटू m NaCl सोल्यूशन है उसका मतलब है 0.5 मोल्स ऑफ NaCl इज डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट. तो यहां से आपको N2 का इंफॉर्मेशन मिलता है और W1 का इंफॉर्मेशन मिलता है which is 1000 grams या 1 kilogram. Now once you know the moles of the solute, weight से आप moles of the solvent find कर सकते हो और इससे mole fraction find कर सकते हो. तो inter conversions काफी easy है once you know all the formulas thoroughly. Now a very important question, 1 molar aqueous solution versus 1 molar aqueous solution, which is more concentrated? One molar या 1 molar, which is more concentrated? बोलो. Molar. Why? देखो 1 molar का मतलब क्या? There is 1 mole of the solute dissolved in 1 liter of 1 liter of solution versus 1 molar का मतलब there is again 1 mole of solute. solute तो कॉमन है, 1 मोल ही है, बट अब कितने में डिसॉल्व्ड है? 1 kg of solvent. 1 kg of solvent. मतलब मोलैलिटी में 1 मोल ऑफ द सोल्यूट इज कंप्लीटली डिसॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट. बट जब हम मोलैरिटी बोलते हैं तो उसमें 1 लीटर सोल्यूशन आता है और सोल्यूशन में सोल्यूट भी आ गया, सॉल्वेंट भी आ गया. बराबर. मतलब कहना से यहां पर जो सॉल्वेंट का प्रोपोर्शन है कंपेयर टू दिस 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट विल बी लेस या मोर? Less. कम ही होगा क्योंकि 1 लीटर का सोल्यूशन है उसमें कुछ अमाउंट द सोल्यूट का होगा ही. मतलब सॉल्वेंट का कंसिडरिंग डेंसिटी ऑफ वाटर एक्वियस की बात कर रहा हूं एज 1 ग्राम पर सीसी द सॉल्वेंट विल बी लेस ओवर हियर. तो अगर आप रेशियो की बात करते हो तो बिकॉज ऑफ द लेस अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट this moles upon the volume will be comparatively bigger ना.
Yes or no? Yes, sir. तो एक्वियस सोल्यूशन में मोलैरिटी और मोलैलिटी को जब कंपेयर करते हैं तो 1 मोलर इज ऑलवेज मोर कॉन्सेंट्रेटेड देन द 1 मोलर एक्वियस सोल्यूशन। इन नोट्स में भी दिया है और इसका पूरा पैराग्राफ एक्सप्लेनेशन के साथ अवेलेबल है, ठीक है। बट दिस इज ट्रू फॉर एक्वियस क्योंकि उसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर सीसी रहती है ना। अगर डेंसिटी 1 से कम या 1 से ज्यादा होगा तो उसका रिलेशन चेंज हो जाएगा। तो aqueous word is very important over here. Do you agree? Yes, sir. Then we have a very important concentration term, that is normality. What was the hero of this? N factor. N factor. और नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में फर्क सिर्फ इतना है कि मोलैरिटी में मोल्स कंसिडर होते हैं, for which you require the stoichiometric coefficient when we talk about the reaction, but normality में n factor use होता है जो reaction को normalize कर लेता है such that it takes care of the stoichiometry, and while equating the normalities you don't require the stoichiometric coefficient. That was the magic of solving the questions in the mole concept, right? Yes, sir. So normality is defined as the ratio of number of gram equivalents upon the volume of the solution in dm cube. वहां पे मोल्स, यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट्स। मोल्स क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। बट ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होता है? गिवन मास अपॉन Equivalent mass. equivalent mass, and equivalent mass in turn is equal to molar mass upon the N factor. n factor, ठीक है। और मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते थे बाय टेकिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट? Equivalent. इक्विवेलेंस। और 4 फॉर्मूलाज मैंने यहां पर दिया था, कैन यू रिकलेक्ट? moles into n factor. परफेक्ट। एक था मोल्स इनटू एन फैक्टर, Normality into volume. नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, Volume upon equivalent. वेट अपॉन द इक्विवेलेंट मास, एंड वॉल्यूम अपॉन द इक्विवेलेंट वॉल्यूम। मैंने आपको क्या बोला था कि अगर क्वेश्चन में वेट है तो फॉर्मूला नंबर 1 यूज करो, वॉल्यूम है तो फॉर्मूला नंबर 2, मोल्स है तो फॉर्मूला नंबर 3, और नॉर्मलिटी दिया है तो फॉर्मूला नंबर 4, ठीक है। और ये सारे चीजों में अपना हीरो कौन है? N factor. एन फैक्टर। अभी एन फैक्टर को ढूंढने का अलग अलग स्पीशीज के लिए अलग अलग फंडा है। Here is the table. So if we have the consideration of an acid, the n factor is equal to the basicity of acid. तो अगर रिएक्शन में हम कंसिडर नहीं कर रहे, खाली स्टैंड अलोन एसिड कंसिडर कर रहे हैं, तो द नंबर ऑफ H plus ions is called its basicity, which itself is the n factor. जैसे HCl, H3PO2 and H3PO3 are all monobasic acids. Now phosphorus के 3 main oxy acids है. What is the name of the first one? H3PO2, Hypophosphorus. also called Phosphenic acid. correct. अब फॉर्मूला में तो H3 है, लेकिन it has only one dissociable H plus ion, because the structure of H3PO2 is P double bond with how many H and OH? 1 OH and 2 H. 1 OH and 2 H, which makes this a good reducing agent because of the pH bond, and a good acid because of the number of POH bonds. तो एक POH है, मतलब ये मोनो बेसिक एसिड है और एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट था।
H3PO3 की बात करें तो इट्स अ वीक मोनोबेसिक एसिड. Does it dissociate H plus on its own? No. No, it doesn't dissociate H plus on its own. Once dissolved in water, it forms a complex ion, which is BOH4 BOH4 minus and dissociates the H plus ion. तो उसके बेसिस पे ये मोनोबेसिक एसिड होता है, तो इसका n फैक्टर 1 लिया जाता है. फिर सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरस या ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, कार्बोनिक एसिड, these are all dibasic acid and phosphoric acid is a tribasic acid. ठीक है. अब मैंने क्या बोला, स्टैंड अलोन अगर खाली एसिड कंसिडर कर रहे हैं तो ये n फैक्टर्स करेक्ट है. लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं that phosphoric acid is reacting with NaOH to give NaH2PO4 and water. If I ask the equivalent mass of H3PO4, what should be your answer? Quick. So H3PO. It's just the molar mass of H3PO4, which is equal to the molar mass of sulfuric acid, which is equal to 98. 98 upon 1 लिया जाएगा. Now, though the phosphoric acid is a tribasic acid, but in this reaction, it is only utilizing 1 H plus to neutralize. बाकी 2 H plus तो अभी भी available है ना, समझा. इसीलिए इसका इक्विवेलेंट मास इसके मोलर मास के बराबर ही होगा, 98/3 नहीं होगा. तो अगर सिर्फ अकेला एसिड है तो n फैक्टर 3 लेना है. H3PO4 का रिएक्शन में रिएक्शन डिसाइड करेगा व्हाट इज द n फैक्टर. हैव यू अंडरस्टूड एवरीवन? बोलो. Then base के लिए the acidity of the base, the number of OH minus ions dissociated. NaOH and KOH are the weak monoacidic bases and calcium hydroxide is a diacidic base. Salt के लिए we take the total charge of the cation or the anion which is always the same magnitude wise. तो aluminium sulfate में आप इसको dissociate करोगे तो मिलेगा 2Al plus 3 and 3SO4 minus 2. आइदर वेज अगर चार्ज देखोगे तो कटायन का +6 आ रहा है, अनायन का -6 आ रहा है, यानी n फैक्टर को 6 लिया जाता है. ठीक है. रिडॉक्स रिएक्शन में यू ऑब्जर्व द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड मल्टीप्लाई द टोटल एटम्स. मल्टीप्लाई बाय टोटल एटम्स अंडरगोइंग द चेंज. डू नॉट फॉरगेट दिस. ये ऐड कर लो प्लीज एवरीवन. Change in oxidation number times the total atoms undergoing the change. Now redox में बताओ मुझे, how many types of redox reaction do we have? कितने टाइप के redox reaction पढ़े थे हमने? हेलो. 4. What are they? Intramolecular, intermolecular, self and disproportionate. Self and disproportionation are different. Self redox को ही disproportionation बोलते हैं. सेम है वो. तो इंटरमोलिकुलर में there are 2 species in different molecules undergoing the redox. Intra में there are 2 species within the same molecule undergoing redox. And self में the same atom undergoes oxidation as well as reduction. That is called a self redox or a disproportionation reaction. Self redox के n factor के लिए एक formula भी था. What was that? Product upon sum. N1 into N2 upon N1 plus N2, product upon the sum. ठीक है. तो रिएक्शन में ये आपका इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स है, जहां पे मैग्नीशियम बर्न हो रहा है, चेंजिंग इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम 0 to 2 एंड ऑक्सीजन चेंजिंग फ्रॉम 0 to -2.
तो अगर मैं मैग्नीशियम का n फैक्टर पूछूं तो इट विल बी चेंज दैट इज 2 इनटू द नंबर ऑफ एटम्स विच इज ओनली 1, तो यहां पर 2 होगा। लेकिन ऑक्सीजन का n फैक्टर अगर मैंने पूछा तो व्हाट विल बी द आंसर? हाँ, व्हाट इज द ऑक्सीजन का n फैक्टर? अरे भाई, Four. चेंज इनटू द टर्न नंबर ऑफ एटम्स। अब एटम्स यहाँ पे O2 का 2 कंसिडर करोगे ना, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया रिडॉक्स का n फैक्टर। अलग अलग टाइप के रिडॉक्स हमने पढ़े हैं। अब ऑक्साइड्स के लिए सिंपल शॉर्टकट है, रियल वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन को चेक करो। जैसे अगर मेरे पास मैग्नीशियम का ऑक्साइड है तो n फैक्टर इज विथ रिस्पेक्ट टू रियल वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन विच इज -2, तो यहाँ पर n फैक्टर विल बी इक्वल टू +2, यानी 2 होगा। साइन को हम नहीं लेते हैं। ठीक है, वैसे ही मान लो आपको एक जनरल ऑक्साइड दिया है ऑफ द टाइप AX एंड BY या OY, सॉरी AXOY, तो ऑक्सीजन की रियल वैलेंसी -2 होनी चाहिए। अगर वो सेटिस्फाई हो जाती है तो जो भी आपका चार्ज है यहाँ पर दैट विल बी इट्स n फैक्टर। तो अब यहाँ पर x को 2 बनाने के लिए मैंने क्या बोला था, डिवाइड बाय x एंड मल्टीप्लाई बाय 2, और जो कीड़ा इधर किया वही कीड़ा उधर भी करने का। दिस इज व्हाट आई हैव टॉट। ठीक है, तो अब इसको हम लिख सकते हैं A2O2y बाय x। अब विथ रिस्पेक्ट टू रियल वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन A का जो चार्ज है वही उसका n फैक्टर है विच इज 2y बाय x, एंड दिस इज व्हाट यू गेट। तो अगर आपसे पूछते हैं कि फॉर द ऑक्साइड ऑफ द टाइप AXOY व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास, द आंसर विल बी इक्विवेलेंट मास विल बी इक्वल टू मोलर मास अपॉन n फैक्टर। समझा? Yes, sir. अब ये सेम फंडा आप सल्फाइड्स, नाइट्राइड्स, हैलाइड्स सब के लिए अप्लाई कर सकते हो। खाली फंडा क्या है, रियल वैलेंसी का फंडा रिलेट करना है। ठीक है, जैसे अगर फॉस्फाइड की बात करूं, कैन यू टेल मी फॉस्फाइड ऑफ द टाइप AX एंड PY व्हाट विल बी द n फैक्टर ऑफ A? 3y by 3y by x, क्योंकि आपको x को 3 बनाना है, उसके लिए डिवाइड बाय x मल्टीप्लाई बाय 3 कर लो, आंसर आ गया ओरली 3y by x, खत्म। सेम वे में हाइड्राइड्स में आप हाइड्राइड यानी H की रियल वैलेंसी को चेक करोगे दैट इज -1। तो जैसे C2H4 उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला CH2 लिख सकते हैं, तो आई कैन स्प्लिट इट एज C+2 एंड H -1। तो रियल वैलेंसी अगर हाइड्राइड का -1 है तो इसका n फैक्टर डायरेक्टली उसका चार्ज होता है दैट इज 2, खत्म। Clear with this table? Yes, sir. Perfect. Then नॉर्मेलिटी में 0.1 नॉर्मल HCl का मतलब 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl is dissolved in 1 gram या 1 liter of the solution, और 1 ग्राम इक्विवेलेंट इज सेम एज मोलर मास ऑफ HCl क्योंकि उसका n फैक्टर तो 1 ही होता है। ठीक है, और एक चीज, नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी में द रिलेशन इज नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी टाइम्स द हीरो n factor. Then we have ppm, parts per million. There are some solutions which have very low concentrations of the solute. For such type of solutions we use a parameter called parts per million. ये similar होता है weight by weight या volume by volume से, खाली फर्क है कि वहां पे 100 का रेफरेंस लेते हैं, यहाँ पर मिलियन का रेफरेंस लेंगे दैट इज 10⁶। So the ppm formula is weight या volume of the solute divided by weight या volume of the solution, and instead of 100 just multiply 1,000,000, 10 lakh और 10⁶। ठीक है, और ppm का एप्लीकेशन, concentration in ppm can also be expressed as mass to mass, volume to volume and mass to volume, which I've already discussed. अब
1 ppm of fluoride ions in water prevents tooth decay. तो टूथपेस्ट में फ्लोराइड का प्रेजेंस होता है एंड दैट फ्लोराइड बेसिकली इज एसेंशियल टू प्रिवेंट द टूथ डीके, लेकिन उसकी परमिसिबल वैल्यू अप टू 1 ppm होती है. अगर 1 ppm से ज्यादा हो, to an extent of 1.5 ppm, it causes the tooth to become mottled and its high concentration can also be poisonous. क्योंकि सोडियम फ्लोराइड जो है वो रेड पॉइजन में भी यूज होता है. तो ऑब्वियसली the concentration of 1.5 ppm or more is going to be dangerous. ठीक है, तो जो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का मैंने वीडियो भेजा था उसमें भी आयंस का ppm परमिसिबल कॉन्सेंट्रेशन और उसके साइड इफेक्ट्स अगर परमिसिबल से ज्यादा हो वो दिया हुआ था. उसके ऊपर क्वेश्चंस आए हैं 2020 में भी, 2021 में भी. There are many factual questions which are there in the previous years. So please go through those table and the information very precisely. अच्छे से go through करना है. ठीक है? Yes or no? So this completes the first part, that is the concentration parameters for the solutions. अब कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं. Calculate mole fraction of solute in its 2 molar aqueous solution. आपको मोलैलिटी दिया है, मोल फ्रैक्शन ढूंढना है. तो सबसे पहले कोई भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म का इंफॉर्मेशन उसको आप रीड करना सीख लो. हाउ वुड यू रीड 2 मोलर मींस व्हाट? Means what? 2 mole of solute and 1 kg of water. Perfect. 2 molar means mole per kg. 2 mole of the solute is present in 1 kg या 1000 gram of solvent. तो आपको यहाँ पर N2 तो मिल चुका है, 1 kg मतलब W1 है. ठीक है, तो W1 से मोल फ्रैक्शन के लिए आपको N1 और N2 चाहिए. तो N1 is W1 upon the molar mass. पानी है मतलब 1000 by 18. This is a famous ratio of recurring 55.55. तो अब यहाँ पर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट पूछा है, which will be equal to N2 upon N1 plus N2, which is 2 upon 57.55, and you will get the answer without any unit. That's it. मान लो अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट भी पूछा होता तो आपको वापस फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है. x1 will be simply equal to 1 minus whatever is the x2 का आंसर. तो ये होता है इंटर कन्वर्जन, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन का. सेम वे में मोलैरिटी और मोलैलिटी को भी हम इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं. एक में वेट है, दूसरे में वॉल्यूम है. So the interconversion will be done with the help of which parameter? Density. तो अब डेंसिटी के रिलेटेड कैसे करेंगे? तो सबसे पहले अगर मान लो आपको दिया है m मोलर सोल्यूशन, तो m मोलर का मतलब क्या? हाउ वुड यू रीड दिस? M moles of solute in 1 liter of solution. Superb. m moles of solute in 1 liter या 1 dm cube of the solution. ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन आपको पता है. और डेंसिटी से रिलेट करना है तो लेट d of the sol represent the density of solution. ठीक है, तो अगर आपको मोलैरिटी से मोलैलिटी जाना है तो वॉल्यूम को वेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उसी के लिए तो डेंसिटी आया. तो फर्स्ट स्टेप में ऑब्वियस है, आप डेंसिटी को रिलेट करोगे. डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन इज मास ऑफ द सोल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन. डू वी नो द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन? डू यू नो द वॉल्यूम? 1 लीटर. तो आपका यहाँ पर जो डेंसिटी है ना वो जनरली ग्राम पर cm क्यूब में दिया जाएगा. तो यहां से जो सोल्यूशन का मास है दैट विल बी इक्वल टू डेंसिटी टाइम्स द वॉल्यूम.
डेंसिटी ग्राम पर सीएम क्यूब में है और वॉल्यूम आपका 1000 सीएम क्यूब के बराबर है, तो सीएम क्यूब कैंसिल हो जाएगा। द मास ऑफ द सोल्यूशन यू गेट इज 1000 D इन ग्राम्स। अब सोल्यूशन में से सोल्यूट को निकाल दोगे तो आपको W1 मिल जाएगा जो मोलैलिटी का डिनोमिनेटर है, तो सोल्यूशन माइनस W2, तो 1000 D तो m sol मिला हमें, माइनस W2 विल बी m विच इज द मोलैरिटी यानी मोल्स इनटू द मोलर मास mm2, ये भी ग्राम्स में मिल गया। तो अब सेकेंड स्टेप में मोलैलिटी का फॉर्मूला अप्लाई कर लो विच इज N2 अपॉन W1 इन kg। अब kg में सब्स्टिट्यूट करना है तो दिस ग्राम नीड्स टू बी कन्वर्टेड, तो आपका यहाँ पर फॉर्मूला आ जाएगा m अपॉन 1000 D माइनस mm2 एंड इंटू 10⁻³ अब kg में बन गया ना। तो फाइनली छोटू m इज इक्वल टू 1000 इंटू बड़ू m अपॉन 1000 D माइनस mm2। मतलब अगर मोलैरिटी और डेंसिटी दिया है तो मोलैलिटी को डायरेक्टली इस फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हो। अंडरस्टूड? Yes, sir. So look at this numerical battery acid, तो जो हमने lead accumulator में बैटरी यूज किया था, if you remember it was consisting of sulfuric acid solution 38%. Battery acid is 4.22 molar aqueous solution and has a density of 1.21 gram per cm3. What is the molality of H2SO4? अब यहां पर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकता हूं ना, छोटू m इज इक्वल टू 1000 इंटू बड़ू m अपॉन 1000 D माइनस mm2। तो सिंपल सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा 1000 इंटू 4.22 अपॉन 1000 इंटू 1.21। टेक केयर की डेंसिटी ग्राम पर सीएम क्यूब में होना चाहिए जो कि है, माइनस मोलैरिटी 4.22 है और सल्फ्यूरिक एसिड है तो उसका मोलर मास 98 होता है। खत्म। आप कैलकुलेट कर लो और आपको यहां पर मिल जाएगा मोलैलिटी इज मोल पर केजी। और इसका आंसर जब देखोगे ना तो आपको ये ऑब्जर्व होगा कि कैपिटल M स्मॉल m की वैल्यू से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि एक्वियस सॉल्यूशन में मोलर इज ऑलवेज मोर कॉन्सेंट्रेटेड देन मोलल। Now you can clearly understand that funda with this numerical. Understood? Yes, sir. Perfect. So these are all repetitive parts which we have already discussed in mole concept. कुछ नया नहीं है, ठीक है? एक और क्वेश्चन, the tolerable level of contamination of chloroform in a given sample of drinking water is found to be 15 ppm. टॉलरेबल यानी परमिसिबल लेवल 15 ppm है, 15 के ऊपर होगा तो द ड्रिंकिंग वाटर इज डेंजरस या हार्मफुल फॉर द बॉडी। ठीक है, अब यहाँ पर बेस्ड ऑन दिस देयर वाज टू थिंग्स, एक्सप्रेस इट इन परसेंटेज बाय मास एंड डिटरमाइन द मोलैलिटी। अब ppm का मतलब क्या होता है? अगर बाय मास बोला है इसका मतलब 15 ग्राम ऑफ what is the solute? Chloroform is dissolved in 10⁻⁶ million है ना, 10⁻⁶ ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो जैसे आपने ये रीड किया आपको मिल गया वेट ऑफ द सोल्यूट, वेट ऑफ द सोल्यूशन। और अगर सॉल्वेंट का वेट बात करूं तो 10⁻⁶ माइनस 15 होगा, मतलब 1 मिलियन से अगर 15 माइनस भी करोगे तो ऑब्वियसली वो अप्रॉक्स 10⁻⁶ के बराबर ही होगा ना। पीपीएम में जनरली वेट ऑफ द सॉल्वेंट और वेट ऑफ द सोल्यूशन ऑलमोस्ट बराबर लेना होता है। तो यहां पर देखो, परसेंटेज बाय मास इज मास का रेशियो इनटू 100 को स्प्लिट कर लो 10⁻⁶ एंड 10⁻⁻⁴ में। अब जो 10⁻⁶ वाला पार्ट है वही तो आपका पीपीएम है। तो फाइनली अगर आपको पीपीएम दिया है तो परसेंट बाय मास इज सिंपली दैट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁴।
इससे करोगे तो भी सेम आंसर आएगा, और ये फॉर्मूला के थ्रू जाओगे तो भी सेम आंसर आएगा, और इसकी वैल्यू जनरली बहुत ही छोटी होती है बिकॉज ऑफ द 10⁶ पावर। देन मोलैलिटी ढूंढने के लिए सॉल्वेंट का जो मास है, जैसे मैंने बोला 100 में से माइनस करना पड़ेगा, इसको ऑलमोस्ट 100 भी ले लोगे तो कोई इश्यू नहीं है, ज्यादा फर्क नहीं आएगा, ठीक है। फिर मोल्स फाइंड किया, और मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी गिव्स यू द छोटू m। मोल्स आपका 15 × 10⁻⁻⁴ है, अपॉन वेट ऑफ द सॉल्वेंट इज 99.9985 इंटू 10⁻³ कैलकुलेट करो और आपको मोलैलिटी मिल जाएगा ये। समझा? Yes, sir. Any doubt up till this? No. बोलो। No, sir. Okay. Now coming to the next part, and this is very important, solubility of solute in solvent. So when the solute gets dissolved in the solvent, the amount of the solute which is dissolved will determine its solubility. Solubility is basically कितना amount of solute present है in a particular amount of solvent, and it's nothing but the concentration only. कितना सल्यूट कितने सॉल्वेंट में प्रेजेंट है वो तो कॉन्सेंट्रेशन ही होता है ना, इसीलिए तो सल्यूबिलिटी का यूनिट भी मोलैरिटी के यूनिट के बराबर होता है, मोल पर लीटर या मोल पर dm³। ठीक है, अब हमारे पास अलग अलग टाइप के सॉल्यूशंस है, बट जो इंपॉर्टेंट टाइप का सॉल्यूशन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं दैट इज सॉलिड इन लिक्विड। एग्जाम्पल है नमक का पानी, शुगर का पानी, या और salts dissolved in water. Now when you dissolve a pinch of salt in water, the salt gets dissolved, but if you go on adding the salt, will it get dissolved endlessly? No. No. क्या होगा? Saturate. Saturate होगा, और saturate होने के बाद भी मान लो और salt ऐड करते हो तो Supersaturated. सुपर सैचुरेटेड, और सैचुरेटेड के पहले जब हम सॉल्ट ऐड कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड में बेसिकली हम सॉल्ट को डिसॉल्व करते जा सकते हैं अप टू द थ्रेशोल्ड लिमिट। जैसे ही वो थ्रेशोल्ड पहुंच जाता है द सोल्यूशन इज सेट टू बिकम सैचुरेटेड, और इस पॉइंट पे बेसिकली दो प्रोसेसेस एक साथ होने लगते हैं। पहला प्रोसेस जब सॉल्ट पानी में डिसॉल्व हो जाता है इट्स सेट टू गेट डिसॉल्व्ड एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड डिसोल्यूशन, और जैसे ही उसका मैक्सिमम लिमिट रीच हो जाता है तो द सॉल्ट आल्सो हैव द टेंडेंसी टू क्रिस्टलाइज, द प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। तो एट द पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, मतलब जब सोल्यूशन सैचुरेट हो जाता है, these two processes are taking place at the same rate, मतलब the rate at which the salt is getting dissolved is equal to the rate at which the solution is getting crystallized, बराबर। and what is this condition called? when the rates become equal, Equilibrium. इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम कैसा होगा, स्टैटिक के डायनामिक? Dynamic. डायनामिक, मतलब दोनों प्रोसेस चलते जाएंगे लेकिन क्योंकि इक्वल रेट से हो रहे हैं तो हमको लगेगा कि ये स्टॉप हो चुका है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। स्टेयरकेस का जो एग्जांपल दिया था याद रखना है, ठीक है। तो सिंस दिस इज एन इक्विलिब्रियम कंडीशन, its solubility at a particular temperature will be nothing but a constant which is called its equilibrium constant। और अब अगर और अमाउंट ऑफ सॉल्ट हम डालते जाएंगे तो दैट सॉल्ट विल टेंड टू गेट प्रेसिपिटेटेड, सेटल डाउन एट द बॉटम एंड द सॉल्यूशन इज सेड टू बी सुपर सैचुरेटेड। ठीक है, अब
कोई भी सॉल्ट किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहा है तो वो डिपेंड करता है 4 फैक्टर्स के ऊपर। नेचर ऑफ द सल्यूट, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, टेम्परेचर एंड प्रेशर। The solubility depends on 4 main parameters: nature of the solute, nature of the solvent, temperature and pressure. ठीक है। अब solubility जब भी हमने पढ़ा है तो I always say that it follows a simple rule of like dissolves like. like dissolves like। मतलब अगर polar solute है तो it will dissolve in Polar solvent. polar solvent। तो HCl पानी में डिसॉल्व करता है क्योंकि इट इज लाइक डिसॉल्व्स लाइक। लेकिन क्या बेंजीन पानी में डिसॉल्व करता है? No. नहीं, क्योंकि बेंजीन नॉन पोलार सब्सटेंस है तो वो पोलार में डिसॉल्व नहीं करेगा, या तो बहुत कम डिसॉल्व करेगा या इनसोल्यूबल होगा। ठीक है। तो नेचर ऑफ सल्यूट एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट में पोलैरिटी प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। पोलर डिसॉल्व्स इन पोलर, नॉन पोलर डिसॉल्व्स इन पोलर, वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। अब टेम्परेचर की बात करते हैं। जब हम सॉल्ट्स को कोई भी लिक्विड में, एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द कॉमन एग्जाम्पल लिक्विड यानी पानी, तो सॉल्ट को जब पानी में डालते हैं तो सम ऑफ द सॉल्ट्स मेक द सोल्यूशन हॉट एंड सम ऑफ द सॉल्ट्स मेक द सोल्यूशन कोल्ड। व्हाई इज दैट सो? कुछ सॉल्ट्स सोल्यूशन को गर्म करते हैं, कुछ कोल्ड कर देते हैं, क्यों? Endo and exothermic processes. The concept of endo and exothermic processes. ठीक है। Can you give me an example of a salt when dissolved in water makes the solution warm या hot? चूना जब पानी में डालते हैं तो पानी गर्म होता है कि नहीं होता है? Yes, sir. तो चूना यानी कैल्शियम कार्बोनेट या उसका ऑक्साइड भी ले सकते हैं, CaO। When that is dissolved in water, it makes the water warm. Why? Because that salt when dissolved in water is what process? Exo की endo? Exo. तो हीट रिलीज हुआ, वो जो हीट रिलीज हो रहा है वो पानी को गर्म करने के लिए यूज अप हो जाता है। That is why in that case, because of the endothermic process, the solution becomes warm. ठीक है। Similarly, some salts when dissolved makes the solution cold. Example is ammonium salts. अमोनियम का क्लोराइड, अमोनियम का नाइट्रेट। याद रखना, अमोनियम salts in water makes the solution cold. और यही फंडा को यूज किया जाता है आइस पैक्स में। आइस पैक्स में जो जेल होता है उसमें अमोनियम कंपाउंड्स होते हैं, तो उस केस में दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज एन, कैसा होगा वो प्रोसेस? Endothermic. एंडोथर्मिक होगा। तो एंडोथर्मिक होने की वजह से यहाँ पर बेसिकली अमोनियम सॉल्ट जो है वो पूरे हीट को ले लेता है और उसकी वजह से पानी ठंडा हो जाता है, एंड दैट्स वेयर द सॉल्ट्स डिसॉल्व्ड इन वाटर कैन मेक द सॉल्यूशन कोल्ड। ठीक है। नाउ सिंस द डिसोल्यूशन इज एन इक्विलिब्रियम प्रोसेस, मतलब यहां पर इसकी जो सॉल्युबिलिटी है टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट होगी, एंड टेम्परेचर से डिपेंडेंसी यानी अगर हाई टेम्परेचर है तो इट विल बी फेवरिंग विच प्रोसेस? Endothermic. एंडो। शॉर्टकट दिया था ना, हाई 4 लेटर, एंडो भी 4 लेटर। एंड लो टेम्परेचर अगर रहा तो इट विल फेवर अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। मतलब जो प्रोसेसेस एंडोथर्मिक है उसमें सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, बट जो प्रोसेस एक्सोथर्मिक है सॉल्युबिलिटी विल बी इनवर्स टू द टेम्परेचर। इज दिस फंडा क्लियर? Yes, sir. And pressure will have no effect on the solubility of solid and liquid, because जब प्रेशर अप्लाई करेंगे तो सॉलिड्स में तो ज्यादा कोई फर्क होता ही नहीं है, तो उसकी सॉल्युबिलिटी पे भी ज्यादा कोई असर नहीं होगा।
मतलब solid and liquid type of solutions mainly depend on three factors: nature of the solute, nature of the solvent and temperature. टेम्परेचर में डिपेंड करेगा कि जो प्रोसेस अंदर हो रहा है वो एंडो है कि एक्सो. एंडो है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, एक्सो है तो इनवर्स टू टेम्परेचर. दैट्स ऑल. ठीक है, तो यही दो पॉइंट्स मैंने पॉइंट नंबर 6 और 7 में दिया है, और बाकी 1 to 5 आई हैव already explained all the points in detail. Now coming to the second type, solubility of gases and solids. Sorry, gas in liquids. तो इसका तो कॉमन एग्जांपल अपने सॉफ्ट ड्रिंक्स या एरेटेड ड्रिंक्स है. Now tell me, the soft drinks, do you prefer it to be taken chilled or warm? Chilled. Why? क्यों ठंडा ठंडा पसंद होता है? सॉफ्ट ड्रिंक्स में होता क्या है? व्हाट इज द मेन कंपोनेंट? CO2. सोडा, CO2. तो चिल्ड इसलिए प्रेफर किया जाता है क्योंकि लो टेम्परेचर पे जो अमाउंट ऑफ CO2 डिसॉल्व्ड है वाटर में, दैट इज High. हाई. नाउ ये तो फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए. अब इसका रीजन कुड बी अंडरस्टूड ऑन द बेसिस ऑफ गैस लॉज, और गैस लॉज में हम बात करते हैं चार्ल्स लॉ की. क्योंकि जब सॉफ्ट ड्रिंक्स आप कोई भी परचेज करते हो तो दे ऑलवेज कम विद अ सील्ड कैप, मतलब दे आर एट अ कांस्टेंट प्रेशर. So can I say that at constant pressure, the volume of the gas occupied in the liquid is directly proportional to temperature? हाँ कि नहीं? Yes, sir. That's Charles' law, right? तो अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वॉल्यूम ऑफ द CO2 occupied would be more. अगर वॉल्यूम ज्यादा होगा तो जो बबल्स है CO2 के वो बढ़ जाएंगे इन वॉल्यूम. And because they will expand because of the increase in temperature, they will no longer be accommodated in that space which was available in the solvent, and that is why they are kicked out of the solvent, and those CO2 molecules then go off या come out in the form of effervescence. इसलिए जब अचानक से आप ढक्कन खोलते हो तो प्रेशर रिलीज हो जाता है. ठीक है, तो प्रेशर का फंडा क्या है? The aerated drinks are sealed at high pressure because high pressure पे the dissolution या solubility is higher, right? जैसे आप ढक्कन खोलते हो प्रेशर रिलीज हो गया, प्रेशर रिलीज हो गया, वैसे ही CO2 की जो solubility वो कम हो जाती है, और क्योंकि CO2 की solubility कम हो जाती है, those CO2 molecules are kicked out in the form of effervescence. So that is the reason the soft drinks are pressurized at high pressure and they are preferred at the low temperature, मतलब they are preferred chilled. यानी जो solubility है वो temperature से inverse और pressure से directly proportional होता है. Do you agree with these two concepts? Yes or no? Yes, sir. Solubility of a gas is inverse to the temperature because at the low temperature the gas would occupy less volume. Lesser the volume, the amount of CO2 dissolved will be higher, and that's why solubility will be more. And at high pressure the solubility is more, so that gives you solubility of the gas is directly proportional to the pressure. अब यही फंडा जो है ना, that was discovered by a scientist named Henry, and this relation came out to be known as Henry's law. क्या बोला हेनरी ने? कि जितना प्रेशर ज्यादा होगा उतना the gas dissolved in the liquid will be higher, the solubility will be more, and therefore we get a mathematical expression: the solubility of gas is equal to KH into P, where P is the partial of the partial pressure of the gas above the solution. इसके न्यूमेरिकल्स में और क्लैरिटी आएगी, बट याद रखो the solubility is proportional to pressure and it's equal to KH into P, where KH is now called the Henry's constant. As good as ये एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही होगा, बट उसको नाम दिया है हेनरीज कांस्टेंट. समझा?
Yes, sir. अब मुझे बताओ व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ KH? KH का यूनिट Molarity upon pressure. मोलैरिटी अपन प्रेशर, यानी मोल पर लीटर पर एटमॉस्फेयर। खत्म। कॉमनली यूज यूनिट की बात करूं तो मोल पर लीटर पर एटमॉस्फेयर। बाकी ऐसा ही वैसा यूनिट अगर पूछा जाए तो आपको वो ध्यान रखना है कन्वर्जन्स के लिए, बट कॉमनली इज मोल पर लीटर पर एटमॉस्फेयर। अब एक और रिलेशन है यहाँ पर, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस है ना, that is proportional to the mole fraction of the gas present in the solution. This relation we have already discussed. Can you tell me where? Dalton's law. Dalton's law of partial pressure. अगर हमारे पास मल्टीपल गैसेस है डिसॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन, तो कितना गैस ज्यादा डिसॉल्व कर रहा है उसके मोल फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। मोर द प्रोपोर्शन, मोर विल बी द डिसोल्यूशन, मोर विल बी द सॉल्युबिलिटी। दैट्स बेसिकली डाल्टन्स लॉ। लेकिन वो हमने गैसेस के लिए बात किया था, ये गैस इन लिक्विड के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन फंडा एंड द कॉन्सेप्ट रिमेन्स द सेम। तो यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस विल बी इक्वल टू KH इनटू गैस, सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। Now ये जो हेनरीज कांस्टेंट है ना, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैव डिस्कस्ड ओवर हियर। यूनिट के ऊपर हेनरीज कांस्टेंट डिफर करेगा, ध्यान देना। मुझे बताओ यहां पर KH का यूनिट क्या होगा? बोलो। Atmosphere mole inverse. एटमॉस्फेयर Mole inverse. मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट ही नहीं होता ना गौतम। Sorry, sir. मोल फ्रैक्शन इज यूनिटलेस, जस्ट एटमॉस्फेयर। मतलब अगर KH की वैल्यूज एटमॉस्फेयर में दी है, यूज दिस फॉर्मूला। अगर KH की वैल्यू मोल पर लीटर पर एटमॉस्फेयर में दी है, यूज दिस फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला यूज करना है वो आपको KH का यूनिट से डिटरमाइन हो जाएगा, ध्यान रखना। न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, KH के रिलेशन में अगर मैं प्रेशर कांस्टेंट रख दूं एट अ कांस्टेंट प्रेशर, can I say KH is inverse to the mole fraction of the gas? Yes or no? अगर डिसॉल्व्ड गैस का प्रेशर मैंने फिक्स रख दिया तो जो हेनरीज कांस्टेंट है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस के इनवर्स रहेगा, हाँ कि नहीं? Yes, sir. मतलब अब यहां पर अगर किसी गैस का मोल फ्रैक्शन ज्यादा है तो इट मीन्स दैट गैस इज प्रेजेंट इन हायर प्रोपोर्शन, और जितना प्रोपोर्शन ज्यादा होगा, कैन आई से सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा। मोल फ्रैक्शन ज्यादा माने सॉल्युबिलिटी ज्यादा, ठीक है। यानी KH उस केस में उस गैस का कम होगा। डू यू अग्री? Yes, sir. देयरफॉर सॉल्युबिलिटी अगर कंपेयर करना है KH के रिस्पेक्ट से, तो सॉल्युबिलिटी एंड KH आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर क्वेश्चंस आ चुके हैं। मान लो आपको बोला है कि KH चार गैसेस का, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 एंड लेट्स से H2S, चार गैसेस का रैंडम वैल्यूज ले रहा हूं, हाइपोथेटिकल है 1 2 3 4 and the KH is given in atmosphere. Which of the gas is most soluble and which is least soluble? Most soluble कौन सा? He. He, क्योंकि solubility KH से इनवर्स है, एटमॉस्फेयर में KH दिया है। मतलब इस केस में with KH equal to the least value, this particular gas is going to be most soluble। ठीक है, ये हाइपोथेटिकल वैल्यूज है तो गैस को भी हाइपोथेटिकली ले लेता हूं, अननेसेसरी कंफ्यूजन होगा। ABCD, तो आंसर होगा A इज मोस्ट सोल्यूबल एंड D विल बी लीस्ट सोल्यूबल। हो गया एक टाइप का क्वेश्चन सॉल्व। समझा? Yes, sir. नेक्स्ट, डिफरेंट गैसेस विल हैव डिफरेंट KH वैल्यूज एट द सेम टेम्परेचर। अलग अलग गैस है, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, SO2, उनका KH वैल्यूज तो अलग होगा,
लेकिन that value will be fixed only if the temperature is fixed, because KH is as good as an equilibrium constant only ना, कि नहीं? Yes, sir. And equilibrium constant is only temperature dependent. तो जब तक टेम्परेचर सेम है, KH की वैल्यू किसी भी गैस के लिए फिक्स होगा, अलग अलग गैसेस के लिए अलग होगा. And then higher the KH value at a given pressure, lower is the solubility of gas and liquid. KH and solubility inversely proportional है, provided units KH का एटमॉस्फेयर में दिया हो. और ये बहुत कॉमनली यूज्ड यूनिट है, इसीलिए जनरली क्वेश्चन आपको KH एटमॉस्फेयर में ही आता है. समझा? एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ. तो पहला तो ऑलरेडी डिस्कस किया है, कार्बोनेटेड बेवरेजेस. नाउ यू अंडरस्टैंड द रीजन व्हाई द सॉफ्ट ड्रिंक्स आर प्रेफर्ड चिल्ड and at a high pressure. Why they are pressurized at a high pressure? The ultimate reason is the solubility of gas under those conditions is very high. Then climbers and people living at high altitudes. मुझे बताओ, from ground level as we move up to the higher altitudes, hill station पे जाते हैं, what happens to the atmosphere pressure? Decreases. Decrease होता है. तो जैसे जैसे प्रेशर डिक्रीज होगा, solubility of the oxygen present in the atmosphere will also decrease. इसीलिए हिल स्टेशन या बहुत ज्यादा हाई ऑल्टीट्यूड्स पे ब्रीदिंग के इश्यूज हो सकते हैं. Why? Because there will be low concentration of oxygen present over there. That means there will be low concentration of oxygen in the blood. And that is why people living at high altitudes generally suffer to a condition called anoxia, which means weakness and inability to think. अपने दिमाग को think करने के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, वो अगर नहीं मिलता है तो the thinking ability is always compromised. ठीक है, तो एनॉक्सिया याद रखना, और ये हेनरीज लॉ का एप्लीकेशन है. तीसरा, स्कूबा डाइवर्स. तो स्कूबा डाइवर्स जब डीप डाइविंग करते हैं, तो एज दे डाइव डीप अंडर वाटर, व्हाट हैपेंस टू द प्रेशर ऑफ द गैसेस इन द सिलेंडर? Increases. इट इंक्रीजेस. ठीक है, जितना डीप डाइविंग करेंगे, सरफेस के ऊपर प्रेशर कम होगा, नीचे नीचे जाएंगे प्रेशर बढ़ेगा. प्रेशर बढ़ेगा तो गैस की सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी. तो मान लो अगर वो अपने गैस सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन लेकर गए, तो ऑक्सीजन तो ब्रीदिंग के लिए यूज हुआ, बट नाइट्रोजन जो है वो काफी ज्यादा डिसॉल्व होने लगेगा इन द ब्लड. अब जैसे ही वो डीप डाइविंग करके वापस ऊपर आएंगे सरफेस की तरफ, तो यहाँ पर सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, बिकॉज प्रेशर रिलीज होगा. तो नाइट्रोजन जो है अब रिलीज होने लगता है ब्लड से. अब जैसे ही वो रिलीज होगा, इट क्रिएट्स अ मेडिकल कंडीशन कॉल्ड एज बेंड्स. बेंड्स क्या होते हैं? द कंडीशन ऑफ ब्लॉकिंग द कैपिलरीज. तो कैपिलरीज जिसमें से ब्लड पास होता है, वो बेसिकली काफी श्रिंक हो जाएगी, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट क्रिएट्स अ कंडीशन कॉल्ड बेंड्स व्हिच आर वेरी पेनफुल एंड डेंजरस टू लाइफ. इसलिए जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं, उनके सिलेंडर में हीलियम भी होता है along with oxygen and nitrogen, and inert gas is also present. ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि स्कूबा डाइवर्स जो गैस सिलेंडर्स यूज करते हैं, उसमें कॉम्पोजिशन क्या होता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हीलियम वुड बी द आंसर. परसेंटेज याद नहीं लिखोगे चलेगा, बट इंपॉर्टेंटली यू हैव टू रिमेंबर द कॉम्पोजिशन. फाइन. Yes, sir. And lastly we have solid solutions, that is solution of solid and solid. तो दो सॉलिड्स को मोल्टन स्टेट में मिक्स करने पर अपने को अलॉयज मिलते हैं. तो अलग अलग अलॉयज, उसका कॉम्पोजिशन और उनकी प्रॉपर्टीज, ये टेबल भी काफी इंपॉर्टेंट है. इसके ऊपर फैक्चुअल क्वेश्चंस आ चुके हैं. यू नीड नॉट स्किप दिस टेबल, इट्स इंपॉर्टेंट एंड टू बी स्टडीड. जैसे ये ड्यूरालुमिन के ऊपर क्वेश्चंस आया है, which is the alloy which is light in weight and strong and used in the construction of aircraft.
It's mainly a composition, alloy of magnesium with another metals as aluminium, copper and manganese. ठीक है, तो इसको एक बार में याद नहीं कर पाओगे, आपको बार बार इसको देखना पड़ेगा so that you remember the composition. But do remember, ऐसे questions आए हैं, should not miss them. Factual है, याद रखना है. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Perfect. So this completes the first part of the chapter, that is solutions, जिसमें हमने types of solutions discuss किया, interconversions discuss किया, solubility का concept discuss किया for 3 types of solution: solid in liquid, gas in liquid and solid in solid, जिसमें alloys का table ये आपके सामने है. ठीक है, next session में colligative properties, the next part of the chapter will start. Okay. Yes, sir. Done.